Students, welcome back. Last time we have discussed regarding the first method of finding out correlation coefficient, that was scatter diagram method. The main limitation of scatter diagram method was that it cannot find out the exact mathematical value of correlation coefficient. That's why Carl Pearson's method is the best method to find out correlation coefficient. So today we are going to discuss regarding Carl Pearson's method. Now these are the some formulas of Carl Pearson's method. In this given formulas we are going to apply the second formula, third formula and fourth formula for the big practical questions, and the remaining formulas we are going to apply for the short sums. So students, first you have to copy down these formulas. Now before starting the practical question, let me discuss properties of correlation coefficient, which is important theory from practical as well as theory point of view. Now let's start the first point. The value of correlation coefficient lies in the interval -1 to +1. It means जो हम R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो हमेशा -1 आ सकता है या तो +1 आ सकता है या तो उसके बीच की वैल्यूज़ आ सकती है. इफ़ योर आंसर इज़ कमिंग अपार्ट फ्रॉम दिस वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल 1.5, 2.5, it means your answer is wrong. If your answer is coming -1.9, -1.5, then also your answer is wrong. So keep this point in your mind. Now come to the second point. Second point, the correlation coefficient is free from the unit of measurement. It is free from the unit of measurement, correlation coefficient. What does it means? It means when we are finding out the correlation coefficient, we are directly going to write down just the value. उसके साथ में कोई भी यूनिट नहीं होगा. Whatever may be the units of the two variables, R does not have any unit of measurement. हमारे पास में जो टू वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स x एंड y, उनकी कोई भी यूनिट हो, लेकिन R के आंसर में कोई भी यूनिट यूज़ नहीं होगा. R के आंसर में सिर्फ वैल्यू होगी. What does it means? It means, for example, our first variable is say rainfall in centimeter, तो rainfall का यूनिट हो गया सेंटीमीटर. Second variable y, for example yield of rice, तो yield of rice say in क्विंटल, तो उसका यूनिट हो गया क्विंटल. हमारे पास में दो वेरिएबल है x एंड y. पहला जो वेरिएबल है उसका यूनिट है सेंटीमीटर, दूसरा जो वेरिएबल है उसका यूनिट है क्विंटल. लेकिन जब हम R का आंसर फाइंड आउट करेंगे तो R के आंसर में, दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, उसके साथ में कोई भी यूनिट नहीं होगा. दैट्स वाई इट इज़ फ्री फ्रॉम यूनिट ऑफ मेजरमेंट. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल्स x एंड y इज सेम एज द वन ऑफ बिटवीन y एंड x. इट मीन्स हमारे पास में दो वेरिएबल्स जो हैं, वन इज़ x एंड सेकेंड इज़ y. अगर हम उनका सीक्वेंस चेंज करें, x और y है तो y को हम पहले लिखें और x को बाद में लिखें, तो जो हमने पहले आंसर फाइंड आउट किया था x और y लेके, जो दूसरा आंसर आएगा y को पहले रख के, बोथ आंसर विल बी सेम. नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4. पॉइंट नंबर 4, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज with the change or transformation of origin and scale. It means R की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा अगर origin और scale चेंज करते हैं. You will understand this point better while solving the practical question, but let me clear in short. For example, हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं x और दूसरा वेरिएबल है y. अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ वैल्यूज़ दे के रखी होंगी x की
और यहाँ पे नीचे कुछ वैल्यूज़ दे के रखी होंगी y की। बाय टेकिंग दिस वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, हमने अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया और फिर वापस इसी क्वेश्चन में x और y जो है, x में या y में या दोनों में हमने कोई वैल्यू प्लस किया, एक ही वैल्यू x में सभी वैल्यू में प्लस किया, या तो एक ही वैल्यू x में सभी में से माइनस किया, या तो y में एक ही वैल्यू हमने माइनस किया सभी वैल्यू में से, या तो एक ही वैल्यू हमने प्लस किया सभी वैल्यू में से। इन शॉर्ट, x और y वेरिएबल में अगर हम कोई एक वैल्यू प्लस करें या माइनस करें, इट मीन्स इट इज़ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। फिर भी जो हमने पहले r फाइंड आउट किया था और बाद में जो चेंज वैल्यू लेके ओरिजिन ट्रांसफॉर्म करके हम जो r फाइंड आउट करेंगे, दोनों के आंसर में कोई भी डिफरेंट नहीं रहेगा, इट डज नॉट चेंज। नाउ व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल? चेंज ऑफ स्केल मीन्स इंस्टेड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर x के अंदर हम कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं या कोई वैल्यू डिवाइड करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना x या y वेरिएबल में से, या तो दोनों वेरिएबल में, इट मीन्स चेंज ऑफ स्केल। अगेन, अगर हम x या y में चेंज ऑफ स्केल करते हैं, मतलब कोई एक वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें या कोई एक वैल्यू, हमारे पास में जो वेरिएबल है किसी एक वैल्यू से सभी वेरिएबल को डिवाइड कर दें, फिर भी जो ओरिजिनल डेटा था एक्स वाई का, उसका जो आंसर था और हमने जो चेंज ऑफ स्केल किया, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं होगा, आंसर विल बी सेम। होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर 5, r of minus x y will be equal to माइनस r of x y। इट मीन्स अगर हमारे पास में एक वेरिएबल x वो अगर माइनस में है, तो जो हमारा आंसर आएगा r का वो भी माइनस में आएगा। नाउ सेकेंड, r of x minus 1, सो हियर यू कैन ऑब्जर्व जो सेकेंड वेरिएबल है y वो हमारा माइनस में है, तो यहाँ पर भी हमारा एक वेरिएबल जो है वो माइनस में है, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, यानी r का आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। इफ़ द साइन ऑफ एनी वन ऑफ द टू वेरिएबल्स, अगर दो में से किसी एक वेरिएबल की अगर हम साइन को चेंज करते हैं, देन द साइन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट आल्सो चेंजेस, मतलब जो r की वैल्यू है, r का आंसर वो भी चेंज होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, हमारा पहला वेरिएबल था माइनस एक्स, मतलब उसकी वैल्यू माइनस में थी, अगर हमने उसे कुछ नहीं किया और y वेरिएबल को चेंज कर दिया माइनस में, तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल माइनस हो गए, तो जो आंसर होगा वो हमारा प्लस में आ जाएगा। पहले हमारा एक वेरिएबल माइनस में था तो आंसर माइनस में था, लेकिन यहाँ पे दोनों वेरिएबल माइनस में हो गए, मतलब सेकेंड वेरिएबल के साइन को चेंज कर दिया तो आंसर प्लस में आ गया। इन द सेम वे सेकेंड में हमारे पास में जो y वेरिएबल था वो माइनस में था, तो वापस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल और सेकेंड वेरिएबल दोनों माइनस में आ गए, मतलब फर्स्ट वेरिएबल की साइन चेंज हो गई, तो साइन चेंज हो गई तो आंसर भी चेंज हो गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू -1, r इज इक्वल टू 0। In practical questions, in many questions it is asked find out correlation coefficient and interpret it. It means r की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में उसे इंटरप्रेट करना होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो इंटरप्रिटेशन करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में 3 कंडीशंस आर गिवन। अगर r की वैल्यू 1 होती है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। इफ़ r इज इक्वल टू 1, then we can say that there is perfect positive correlation. This we have learned in the previous video, perfect positive correlation. अगर r की वैल्यू 1 होती है
मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो रहा है। व्हेन इंक्रीज और डिक्रीज in the value of one variable results in increase or decrease in the value of the other variable in constant proportion. This word is very important. Then the value of r is 1. It means अगर x वेरिएबल इंक्रीज होता है तो y वेरिएबल भी इंक्रीज होगा, और अगर x वेरिएबल डिक्रीज होता है तो y वेरिएबल भी डिक्रीज होगा. इट मीन्स चेंज इज इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन सेम प्रपोर्शन. सेम मीन्स कांस्टेंट प्रपोर्शन, एक ही रेट पे दोनों में चेंज हो रहा है. देन द वैल्यू ऑफ r विल बी 1. इन स्कैटर डायग्राम मेथड ऑल्सो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड, अगर हमारे पॉइंट्स इस तरह से स्ट्रेट लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था, देन देयर विल बी परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दैट पॉइंट इज गिवन. वी गेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इन स्कैटर डायग्राम. नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ r इज इक्वल टू -1. अगर r की वैल्यू -1 आती है तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? If r is -1, then we can say that there is perfect negative correlation between two variables. Very simple. When increase, decrease in the value of one variable, अगर एक वेरिएबल में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, results in decrease or increase in the value of other variable in constant proportion, then the value of r is -1. Now let me explain in a simple way. अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं x एंड y, x में अगर इंक्रीज हो रहा है, x में इंक्रीज हो रहा है तो y वेरिएबल में डिक्रीज होगा. मीन्स चेंज इज देयर बट इन अपोजिट डायरेक्शन. एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है. एंड इफ देयर इज डिक्रीज in one variable, there will be increase in the other variable. मतलब अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में इंक्रीज होगा. सो यू कैन ऑब्जर्व, लास्ट टाइम ऑल्सो आई हैव एक्सप्लेन, देयर इज चेंज बट चेंज इज इन अपोजिट डायरेक्शन, बट द चेंज शुड बी इन कांस्टेंट प्रपोर्शन. कांस्टेंट, सेम रेशियो, सेम रेट पे चेंज होगा तो r की वैल्यू क्या होगी? -1. In scatter diagram method also I have explained last time. We get all the points. इस तरह से हमारे पॉइंट्स होंगे ऊपर से नीचे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे. सो दैट पॉइंट इज गिवन. वी गेट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन स्कैटर डायग्राम. Now come to the third interpretation. Interpretation of r is equal to 0. If r is equal to 0, it means there is lack of correlation. We have learned lack of correlation मतलब उनके बीच में लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. देयर इज लैक ऑफ, और यू कैन से एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन. बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस? All the time we are not going to get this only three values, r is equal to 1, r is equal to -1, r is equal to 0. We are going to get the values in between these two values. -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़ में भी हमारे आंसर आएंगे. So I will keep it very simple. If your answer is in plus, apart from this answer is plus, then there will be positive correlation, and if your answer is in minus, then there will be negative correlation. और अगर 1 आता है देन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर -1 आता है देन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. r 0 आता है, इट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, मीन्स देयर विल बी लैक ऑफ कोरिलेशन. सो इन दिस वे वी विल राइट डाउन द इंटरप्रिटेशन. होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.